હવે દેખાયું? મેં રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી લીધું છે. વોઇસ મેસેજ હર્ષાબેન નાતીનો છે. સાઈડમાં હા, એટલે જે શેડો આવે છે ને આ હમણાં 10 મિનિટમાં હમણાં જ નીકળી જશે. એ શેડો છે ને 10 મિનિટમાં નીકળી, સનલાઇટ આવી જશે મારા ઉપર પૂરેપૂરું. અવાજ પેલામાંથી આવે છે બરાબર? હા, હું બહાર છું એટલે પવનનો અવાજ તો થોડો બરાબર ને. હા, એ ધીરે ધીરે થોડુંક નીચું કરું. હા, તો હજી સનલાઇટ છે ને, આવશે હમણાં થોડી વારમાં. હા, એક મિનિટ. હર્ષાબેન, હા, હર્ષાબેનનો ઓકે. તો પાછળ લેજો કેમેરાને થોડો. જુઓ હવે પાછળ તો કયો ને. જો બરાબર. એકચ્યુઅલી શું છે કે આ શેડો પડી છે અત્યારે, આ શેડો પડે છે ને, આ સનલાઇટનો હજી 5-10 મિનિટમાં આવી જશે અહીં. આ હાથ દેખાય છે, મારો હાથ દેખાય છે અત્યારે? ઓકે. અવાજ આવે છે પૂરેપૂરો? હેલો. ઓકે. હા, એટલે ના મ્યુટ કરી દઉં ને. એક મિનિટ. હલો, હવે મારો અવાજ આવ્યો તમને પૂરેપૂરો? માલતીબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. હા, અને હમણાં સનલાઇટ આવી જશે ને પૂરેપૂરું, પછી વાંધો નહીં આવે. 9:21 થઈ છે, બરાબર છે ને? અરે 10:21 થઈ. ઓકે, ફાઇન. ચાલો. અરે ભાઈ, તમારા બધાની જોવાની ખૂબી છે. હા, ઓકે ઓકે, ફાઇન. અને ના છે,
ઓકે ફાઇન. ના એ બધું તમારે કાલે કરવાનું. એ બધું તારે કાલે કરવાનું. ચાલ બંધ કરવું અત્યારે કે ચાલુ કરી દઉં? ચાલુ જ રાખો. 22 તો થઈ છે. શું કરું? ચાલ મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ના કોઈ આવે એમ છે નહીં એમાં. શ્યોર શ્યોર. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મળીએ. નમસ્કાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. માતા જગદંબા ભવાનીની અસીમ કૃપાથી 8 દિવસના ઉપવાસ પછી આજે 8મે દિવસે એની જ પ્રેરણાથી અંગત મિત્રોએ જ્યારે એમના દ્વારા પ્રેરણા કરવામાં આવી ત્યારે આ લાઈવ વિડીયો હું આપી રહ્યો છું. જે મારી જોડે યોગાભ્યાસ જે લોકોએ કરેલો છે એમનું સ્વાસ્થ્ય સુંદર રહે, સ્વસ્થ રહે અને જગદંબાની એમના પર કૃપા ઉતરે એટલા માટે આપણે દરરોજ 10:30 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધી અથવા તો 11:15 વાગ્યા સુધી આપણે યોગ અભ્યાસ કરીશું. જે થોડું મને જ્ઞાન ગુરુમાંથી મળેલું છે એવું જ્ઞાન આપને વહેંચી રહ્યો છું. બને ત્યાં સુધી 10:30 વાગે શાર્પ પોતપોતાના આસન ઉપર બેસી જશું અને જે રીતે હું કરું અને કરાવું એ પ્રમાણે કરશો તો મને ખરેખર આપની સેવા કરવાનો આનંદ આવશે. જોવાની ખૂબી એ છે કે આવી કોઈ વિચારણા નહોતી કે કોઈ આકાંક્ષા નહોતી. તો મા જગદંબાને પ્રાર્થના કરી હતી કે હે જગજનની, તારા જ પુત્રો છે, તારા જ બાળકો છે અને તારા જ આશ્રય બધા જીવી રહ્યા છે, તો એમને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, આનંદ, પ્રેમ, લાગણી અને સંતોષ જીવનમાં અભયતા પ્રાપ્ત થાય એ માટે હું શું કરી શકું છું? હું તો અબોધ અજ્ઞાન છું. મને પોતાને ખબર નથી કે હું ક્યાં શું કરી શકું છું. તું જેને પ્રેરણા આપીશ અને તું જેમ કરાવીશ એમ કરવા રાજી છું. 8 દિવસના ઉપવાસ અને અનુષ્ઠાન પછી 7 મે ગઈકાલે અમારા અંગત મિત્રો જેને કહી શકાય કે જેઓએ ખરેખર મારી અંદર કંઈક જોયું હશે અને એમને પ્રેરણા થઈ અને એમણે નક્કી કર્યું કે પ્રમોદભાઈ આવી રીતે આપણે લાઈવ કરી અને તમે યોગ અભ્યાસ કરાવો. ભગવાન શિવ મારી પાછળ તમને દર્શન થતા જ હશે. આદિ યોગી એમણે માનવ જાતિ ઉપર કૃપા કરવાના હેતુથી જ યોગનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો છે અને એમણે પોતાના ભક્તોને બચાવવા માટે જ અલગ અલગ પ્રકારની તમામ ષટક્રિયાઓ આપેલી જ છે. અને આવા મહામારીના સંકટો આજ કે અત્યારે આવ્યા છે એવું નથી. આ વર્ષોથી, હજારો વર્ષોથી એ ચાલ્યા જ આવે છે અને એમાંથી જ મુક્તિ મેળવવા માટે દરેક પ્રકારના ષટકર્મોને એમણે શીખવાડ્યા છે યોગમાં. યોગનો પ્રાદુર્ભાવ ભગવાન શિવે પાર્વતીને કર્યો તો, પાર્વતીએ સૂર્યને કર્યો, સૂર્ય ઈશ્વરને કર્યો. બરાબર છે બધું? અચ્છા. બહુ ફાઇન. કંઈ ત્રુટિ હોય તો જણાવજો, કારણ કે પ્રેરણા તમને જ થઈ છે, પ્રેરણા મને નથી થઈ.
ઓકે ઓકે, બહુ સરસ, બહુ ફાઇન, બહુ ફાઇન. ના ના, તમારા બધાના આશીર્વાદથી, વડીલોની કૃપાથી અને માતા પિતાના આશીર્વાદથી, ગુરુઓના આશીર્વાદથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. બધાને સારું થાય એવી અપેક્ષા છે. મળીએ. તો પરમાત્માએ, ભગવાન શિવે આ પૃથ્વી પર યોગનો પ્રાદુર્ભાવ કરી અને માનવ કલ્યાણ ઉપર, માનવ જાતિ ઉપર એટલા બધા આશીર્વાદ ઉતાર્યા છે કે જેની કોઈ હદ નથી. પરંતુ જે કોઈ એને અનુસરે છે એ જ એને પામે છે. બાકી જોવાથી, જાણવાથી, સમજવાથી એ તમને લાભ કરતા નથી, પરંતુ કરવાથી જ તમને લાભપ્રદ છે. તો જ્યારે જ્યાં જે નાની નાની મોકો મળે અવશ્ય એને જીવનમાં ઉતારો. સુખ, સમૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્યને પ્રાપ્ત કરો અને આ જીવનને બહુ જ અનુકૂળતાથી, પરમાત્માની કૃપાથી તમે સંસાર સાગરને ધીરે ધીરે કરતા નિર્ભયપણે પસાર કરો એવી જ અભ્યર્થના છે. આપણે 10:30 વાગે એટલે પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીશું યોગાભ્યાસ. ચશ્માને બાજુ મૂકી દઈશું. પદ્માસન, અર્ધ પદ્માસન, વજ્રાસન, સિદ્ધાસન, જે આસન અનુકૂળ આવે. જ્યાં સુધી પ્રાર્થના પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે બિલકુલ શરીરને હલનચલન કરવા નહીં દઈએ. પ્રાર્થના એક એવું બળ છે કે જે જીવનમાં તમામ વસ્તુઓને તમારી પ્રત્યક્ષ હાજર કરે છે. પ્રાર્થનાથી તમે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક દરેક જગતની અંદર એની બહુ જ મહત્વ છે અને એની અસર પૂરેપૂરી વર્તાય છે. तो जो हिंदी भाषी है उनके लिए मैं हिंदी में भी बोलूंगा बीच बीच में. तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन एक पैर से करेंगे, एक पैर ऊपर रखेंगे तो वो अर्ध पद्मासन कहलाएगा. दूसरा पैर भी रख देंगे, उसको पूर्ण पद्मासन कहलाएगा. पूर्ण पद्मासन करने के बाद आपको मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखना है. मेरुदंड सीधा रखने के बाद आपको प्रणाम मुद्रा करते हुए आंखें बंद करने के बाद गहरी सांस लेते हुए प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे. ओम शांति शांति शांति. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम्. उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे. प्रणव मंत्र का जाप करेंगे 11 बार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार. गहरी सांस लेते हुए शांत भाव से ओमकार प्रणव मंत्र अकार उकार और मकार चर अचराचर में हर जगह प्रव्याप्त है. ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव. ओम
परमेश्वर है, हर जगह पर व्याप्त है, चराचर में है, आपके अणु अणु के अंदर व्याप्त है। आपको उसी को ढूंढना है। अंदर उतरने का राजमार्ग है। ओंकार करेंगे गहरी सांस लेते हुए।
आंखें बंद ही रखेंगे, उसका आनंद लेंगे। क्या हो रहा है? शरीर शांत हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है, कुछ नई ऊर्जाएं धीरे 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 उत्पन्न हो रही है। उसको ध्यान से दो आंखों के बीच में, भौहें के पास में देखा करें। गहरी सांस लेते हुए भ्रमरी प्राणायाम के लिए चलेंगे। भ्रमरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्रभाग में दबाते हुए आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे, आंखें ऊपर से दबाएंगे हल्की फुल्की। बाकी की 3 अंगुलियां आप मुंह पर रखेंगे। गहरी सांस लेते हुए अकार, उकार और मकार, जो मकार है ओमकार के अंदर, वो आखिरी पोर्शन, उसी की 5 बार भ्रमरी प्राणायाम करेंगे गहरी सांस लेते हुए।
आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे, धीरे 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 सांस लेंगे, पूरे शरीर के अंदर कौन सा कंपन हो रहा है उसका ध्यान देंगे। चित्ताकाश के अंदर कौन कौन से रंग उभर रहे हैं उसको बराबर ध्यान से देखेंगे। गहरी सांस लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर उठाते हुए ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करने के बाद, आंखों पर संपुट बनाने के बाद धीरे 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 आंखें आराम से अंदर से खोल बंद करेंगे। हर एक अंगुलियों के बीच में से प्रकाश के बारीक बारीक किरण जो आपके अंदर आ रहे हैं उसी के अंदर आंखें खोलेंगे। ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पर प्रस्थापित करने के बाद धीरे से लेकर आंख खोलेंगे। जय श्री कृष्ण। ये हमने प्रार्थना करी है, इन गुरुओं का आवाहन किया है, उन शक्तियों को प्रार्थना करी है कि आप अपनी कृपा हमारे पर बरसाइए और ये योगाभ्यास के अंदर आप हमें सहाय रहिए। प्रार्थना क्यों करी जाती है, क्यों ये 3 प्रार्थना करते हैं हम लोग? पहले हम गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये लाखों सालों से गुरु परंपरा से ये ज्ञान यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसलिए गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो गुरु के बिना तो ज्ञान है ही नहीं है। तो उन गुरुओं का हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम गायत्री की उपासना करते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र ऋषियों ने इसीलिए दिया हुआ है। उस 24 अक्षरों का मंत्र जो है वो प्राणायाम के लिए ही है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए है। भगवान सूर्य को साक्षी मानते हुए उनकी सत्य की प्रकाश को उजागर करने के लिए हम गायत्री मंत्र का उद्घोष करते हैं। बाद में धीरे धीरे हम बताएंगे कि वो कैसे गायत्री का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद हम भगवान आशुतोष को प्रार्थना करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिं वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे परम शिव, अमृत संसार में जब हम मृत संसार में आ ही गए हैं तो ऐसे हम जिए, वो शक्तियां हमको प्रदान करो, ऐसे हम जिए जिसकी वजह से जैसे तरबूज अपने वेल पर से अलग होता है तब न तरबूज को पता चलता है न वेल को पता चलता है। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, उसका मतलब है सुगंध, रस, सुगंध सब कुछ लेने के बाद, रस का अपने आंतर उतारने के बाद कब वो अलग होता है, न तरबूज को पता चलता है न वेल को पता चलता है। इसी ढंग से इस संसार में हम ये पंच महाभूत का शरीर लेके आए हैं तो उसमें पूरा उसका आनंद लेकर, उसमें घुल मिल करके उसके सारे रस और सुगंध लेने के बाद जब हम विदा हों तब न संसार को पता चले न हमको पता चले। तो इसी ढंग से हमको मृत्यु के वर्ण में ले जा रहा, क्योंकि अल्टीमेट सत्य तो वही है कि ये शरीर को आज नहीं तो कल तो जाना ही है। तो स्वस्थता से, सुदृढ़ता से, तंदुरुस्ती से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर ढंग से यदि हम स्वस्थ
यही भगवान आशुतोष को हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमको उस ज्ञान का प्रदान करें जो आपने मनुष्य जाति के लिए उद्घोषित किया हुआ है। तो इसलिए ये प्रार्थना हम करते हैं। प्रार्थना के बाद हम शुरुआत करेंगे। योग शास्त्र में धीरे 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 राजयोग एवं हठ योग 2 प्रकार है। हम उनका कॉम्बिनेशन भी करते हैं। जो आसन है, जो प्राणायाम है, वो सब हठ से किया जाता है, थोड़ा सा बलपूर्वक किया जाता है, थोड़ी सी जबरदस्ती अपने आप से करनी पड़ती है, इसलिए हमको हठ योग बोलते हैं। और राजयोग जो धारणा, ध्यान एंड समाधि, वो आंतरिक धोरण से उसको हम अनुभव करना चाहते हैं और उसी की जो क्रियाएं हैं वो हम करेंगे। तो अभी हम शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले पैरों से शुरू करेंगे। आपको पता ही है अक्सर कि जहाँ पर भी कचरा फंसता है किसी भी पाइपलाइन के अंदर, तो वो जॉइंट्स में फंसता है। जैसे ये जॉइंट है मेरा, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये मेरा जॉइंट है, ये जॉइंट है। दर्द यहाँ होगा, दर्द यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, दर्द यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे सारे जो हमारे हड्डियों के जॉइंट्स है उसके अंदर वायु का प्रकोप होता है। तो उस वायु प्रकोप को हल्का फुल्का निकालने के लिए यदि वो यहाँ पर वात, पित्त और कफ कुछ भी है तो उसको दूर करने के लिए योग शास्त्र के अंदर सबसे पहले आप पैर खोल देंगे और दोनों पैरों को खोला करते हुए रिलैक्स करेंगे। बॉडी बिल्कुल सीधी रखेंगे, राइट एंगल में हाथ आगे रखेंगे। पैरों से हम अंगूठों से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये हम प्रक्रिया करते हैं तब खास अपना ये ध्यान रखिए कि हमारा मन जो क्रिया हम कर रहे हैं उसी के ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो। उसका कारण ये है कि ये सारी प्रक्रिया जब योग निद्रा में हम उतरेंगे तब उस वक्त मानसिक रूप से हमको ये प्रक्रिया करनी है। तो अभी ये फिजिकल कर रहे हैं, उसके बाद हम मानसिक तौर पर जाएंगे। तो अभी जब हम फिजिकल कर रहे हैं तो उसका आप खास ध्यान रखिए कि जो भी कर रहे हैं उसको बिल्कुल मन लगा के प्रसन्न चित्त से आनंद भाव से करिए कि ये आने वाले समय में हमको बहुत कारगर रहेगा। तो हमने ये किया, उसके बाद हम नीचे दबाएंगे 1, ऊपर लाएंगे 2, नीचे ले जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड शेप में घुमाएंगे बिल्कुल 1 2, पूरी ईमानदारी से पूरा पैर की आखिरी वाली अंगुली नीचे तक टच हो जानी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम घुटने पर आएंगे क्योंकि यहाँ दर्द नहीं होगा, आपको दर्द यहाँ होगा, दर्द यहाँ होगा। तो ये जॉइंट्स है और यहाँ पर आपको दर्द नहीं होगा। दर्द होगा तो मस्कुलर पेन होगा। यदि आपने कहीं दौड़ धूप कर ली, कुछ ज़्यादा चल लिया या कुछ लग गया, तब जाके आपको यहाँ दर्द होगा, वरना यहाँ कभी दर्द नहीं होगा। ये चीज़ आपको कभी महसूस ही नहीं होगी कि आपके पैरों में कुछ है या नहीं है। हाँ, दर्द जरूर यहाँ होगा। यदि वायु प्रकोप कहीं पर भी आ रहा है तो उसके लिए आपको दवा के नाक पे लगाओ। 1 2 3 4 5 6
पूरे दोनों पैरों को अपने बगल में ले लेंगे, पास में। दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करते हुए आप ले लेंगे। ये है बटरफ्लाई। बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है योग के अंदर, जिसको गोरखनाथ जी ने उजागर किया था। गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ये आसन बनाया हुआ है। और फिजिकली देखा जाए तो ये आसन से आपकी ये हड्डियां हैं, हिप्स के जॉइंट्स हैं, वो कभी टूटेंगे नहीं। आफ्टर 50 के बाद यदि आप गिर जाते हैं तो अक्सर ये हड्डियां यहाँ से टूट जाती है। ये टूटने के संभव कम हो जाते हैं। तो आप दोनों हाथों को बंद करते हुए यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पूरा यहाँ से दबाना है और साथ में पूरा नीचे ले जाना है, जमीन को टच करते हुए। बिल्कुल यहाँ से थोड़ा थोड़ा दबाइए, थोड़ा थोड़ा। अब मान लो कि आज आप इतना ही कर सकते हो तो चिंता नहीं है, क्योंकि इट्स ए जर्नी। ये धीरे 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 आपको रिलैक्स होता रहेंगे। आपको ये कम से कम हर रोज के 500 करने हैं। कितने? 500 बहुत मामूली चीज है। देखो 1 2 3 4 अब आ जाएगी आपको। धम धम धम। ये आपको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, आज यदि आप मान लो कि 50 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आज आपको 100 हो जाए, 500 हो जाए। शुरुआत करिए आज से। हर रोज हम कराएंगे। आज 10 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कर सकते हैं, आनंद। मगर धीरे 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 आप जैसे ही आप करते चले जाएंगे, यहाँ के मसल्स सारे आपके रिलैक्स होते जाएंगे। जैसे ही रिलैक्स हो गए, आपको महसूस होगा चलने में बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और कभी कभार गिराने पर आपके सारे शरीर लचक बढ़ जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। योग में पहलवान बनना नहीं है, एक खास बात याद रखिए। हाँ, चालू रखिए बटरफ्लाई, क्योंकि बात होती रहेगी, बटरफ्लाई भी चलता रहेगा। इससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है, क्योंकि ये है हठ योग। हठ योग में जरूरी ये भी है कि थोड़ा सा मन कंटालता है, शरीर कभी नहीं कंटालता। तो बातें भी करेंगे और बटरफ्लाई भी चालू रखेंगे। तो 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 3 मिनट आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जैसे जैसे आप चलाओगे, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही आपने यहाँ तक आ गए, जैसे हमने पहले पैर से आए, फिर टकने आए, घुटने आए, जंघा आई। अब हम अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, फिर जो आपको पसंद है। अब हम चलेंगे करोड़रज्जु पर। तो आपको दोनों हाथों सर पर रखते हुए आपको धीरे 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 राइट एंगल में ये जो कूदनी है वो आपको लेफ्ट को छुआनी है नीचे धीरे धीरे। अब धीरे 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 जाइए। अब देखिए स्लोली 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 वहां पर टिक जाएंगे। फिर मैं गिनती करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, धीरे 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 वापिस आएंगे। फिर राइट की ओर चलेंगे, स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली। अब आपको यहाँ से ऊपर नहीं करना है। ये पोर्शन जो है आपका कमर का, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ से मेरुदंड को, बिल्कुल स्पाइनल कोड को आपको ट्विस्ट करनी है। देखिए धीरे 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 जाइए आप और नीचे जमीन को टच कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे 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 वापस आइए। देखो अक्सर आप आगे मुड़ोगे तो हो जाएगा, आगे नहीं मुड़ना है आपको। एग्जैक्ट राइट एंगल टू राइट एंगल, एग्जैक्ट एक आवर्तन और करेंगे। स्लोली स्लोली जाएंगे, बिल्कुल स्लोली। आप यदि आज यहाँ तक जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ टच करना ही है। हाँ, आप थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल हो गए, इतना गए बहुत अच्छी बात है, इतना गए बहुत आनंद, वापस गए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आप मापते रहना, तो आज मेरा 2 मिनट बाकी रह गया, आज आधा फुट बाकी रह गया, आज 3-4 इंच बाकी रह गया, आज टच हो रहा है, धीरे धीरे मैं टच कर दिया, ओके बढ़िया है। तो इसी ढंग से एक आवर्तन और करेंगे। जो यहाँ तक जा रहे हैं वो भी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे 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 वहां पर टिके रहे। 20 सेकंड मैं आपको गिनती करता हूँ। आइए धीरे 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 नीचे किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे 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 वापस आइए और राइट हैंड की साइड जाएंगे। फिर एक बार धीरे 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 जाइए आप। वेरी गुड, बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे 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 वापस आइए। पीछे के भाग में हाथ ले जाएंगे और धीरे 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 सांस को बाहर निकालते हुए नाक को जमीन पर टच कराएंगे। गहरी सांस लेते हुए सांस को बाहर निकालते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे 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 सांस लेते हुए बाहर आएंगे। जब भी आप कोई आसन करते हैं और उसका पूर्ण अवस्था आ जाती है, उस वक्त आपको 20 सेकंड वहां पर रुकना है और उस वक्त आपको न सांस को रोकना है न जोर जोर से लेना है। यौगिक श्वसन करना है। यौगिक श्वसन यानी कि साहजिक रूप से जो आपका सांस अंदर आ रहा है और जा रहा है, उस वक्त आप अपनी श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान भी देंगे कि हो क्या रहा है, कहाँ दब रहा है, कौन सी मांसपेशियां दब रही है, कौन से आपकी हड्डियों को दर्द हो रहा है। उस दर्द को आनंद से महसूस करिए, क्योंकि योगा कहीं पर भी पहलवान बनने का रास्ता नहीं है। वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, आपको एकदम नरम करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अभी हम बटरफ्लाई किया, उसके बाद फिर रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को और दोनों पैरों को पूरा खोल देंगे, आगे से पूरा खोलेंगे, पूरा जितना हो सके इतना। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आप किसी के चरण को छुओगे नहीं तो चलेगा,
मगर अपने इस चरण को अवश्य नमस्कार करो, हर रोज नमस्कार करो। ये चरण है तो आपको इस पृथ्वी पर अच्छी ढंग से चलाएंगे। तो आपको गहरी सांस लेते हुए और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए स्लोली स्लोली आपको जाना है। धीरे 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 जाइए, आप सांस को बाहर निकालिए। धीरे 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 आपको पूरा चरण को नमस्कार करना है। अपने ही पैरों के ऊपर सर रखना है और गिनती करता हूं मैं, आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। धीरे 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 सांस लेते हुए वापस। जिनके पास नगर सेठ जैसा पेट है यह सब नहीं करना है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप मान लो यहां तक जा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इधर नाप लो। आज 2 भैंस मेरा रह गया है, बाकी हफ्ते 10 दिन के बाद आप पाओगे कि धीरे 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 1 भैंस और 1 मूठ रह गया, फिर 1 अंगूठा भी चला गया, फिर 1 भैंस ही रह गया, फिर 1 अंगूठा रह गया, फिर 1 मूठ ही रह गया। तो आप धीरे 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 पाओगे, तो अपना प्रोग्रेस आप खुद ही देख सकते हैं। तो धीरे 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 करते जैसे जैसे आप करते चले जाओगे, आपका शरीर जो है आपको साथ देना शुरू कर देगा, लचक आनी शुरू हो जाएगी और पेट के सारे प्रॉब्लम्स आपके निर्मूल हो जाएंगे। तो आपको ये हर रोज करना है। बराबर एक आवर्तन और करेंगे, गहरी सांस लेते हुए। धीरे 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 सांस छोड़ते छोड़ते जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। धीरे 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 तो दोनों पैरों को फिर रिलैक्स कर देंगे। अपने आसन पर आ जाएंगे। अभी हमने करोड़रज्जु को किया, कमर को किया, पेट के स्नायु को किया, छाती को स्नायु को किया। अभी हम दोनों कंधों पर आएंगे। अब हमारे शरीर की रचना इस प्रकार करी है कि जैसे मान लो कि आप अपने एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर एक नगर सेठ होता है, बराबर है, एक मुनीम होता है, 1 या 2 मुनीम होते हैं। जैसे आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या परचेज डिपार्टमेंट का हेड होता है, और बाकी के सारे मजदूर भी होते हैं। एक मिल ऐसे ही चलती है कि एक सेठ होता है, एक मुनीम होता है, बाकी मजदूर होते हैं। तो ये शरीर के अंदर जो आपका सर है वो नगर सेठ है, उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ये जो है दूसरा पार्ट हमारा, वो आपका मुनीम है। शरीर के 3 पार्ट, सर, धड़ और हाथ पैर, ये बचपन से सिखाया जाता है सबको। तो ये जो धड़ है आपका, उसमें 2 पार्ट है। एक अपर पार्ट जहाँ श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है, रुधिराभिसरण तंत्र रहता है, और दूसरा पार्ट है आपका पाचन तंत्र है, जिसके अंदर आप खुराक भी डालते हो। अब ये मुनीम जो है आपको कंट्रोल में रखना है। क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कब खा रहे हो, आपको हर हमेशा नगर सेठ से कंट्रोल में होना चाहिए। या ऊपर के पार्ट में क्या सांस ले रहे हो, कैसी सांस ले रहे हो, कब सांस ले रहे हो, तो क्या है, तो यहाँ पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। इस दोनों को कंट्रोल में रखना है।
और रही बात हाथ और पैरों की, वो मजदूर है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। जितनी आप एक्सरसाइज कराओगे, जितनी मजदूरी कराओगे, इतने वो परफेक्ट रहेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये पूरी जो आपकी इंडस्ट्रीज है, आपकी शारीरिक रूप से जो पंच महाभूत की इंडस्ट्रीज भगवान ने दी है, उसको कंट्रोल में आपको ही रखना है। तो आपको अब हथेलियां आई थी, तो कंधे के लिए क्या करेंगे आप, बराबर है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राउंड शेप में घुमाने के लिए। एक्सेल करेंगे, जैसे आगे आएगा एक्सेल करेंगे और ऊपर जाएगा, यहाँ से दोनों को टच कराते हुए पूरा ऊपर ले जाएंगे और इनहेल करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने ये कंधे को किया, बराबर है। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ताली नहीं बजानी है, ये आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो जोर से थड़ कर दोगे। आपको यहाँ से आपको इतना मगज कंट्रोल आपका शरीर का होना चाहिए कि हाँ, यहाँ तक करने के बाद वो अपने आप रुक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको आगे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आगे और पीछे आपको हाथ नीचे नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2, पीछे भी ताली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को वही रखना है। अब आपने हम कंधों का कर लिया है, अभी हम करेंगे उन्हीं का। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा ऊपर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुई कोने वाली बात। अभी भी हाथ को नीचे नहीं रखना है। ये मत समझना कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं संपूर्ण आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हूँ। थोड़ा सा दर्द हो तो थोड़ा सा सह लेना, मगर अभी ये आपको हाथ जितने मजबूत होंगे, पैर जितने मजबूत होगा और ये मुनीम आपका जितना कंट्रोल में होगा, बढ़िया सा एकदम फैक्ट्री चलती रहेगी आपकी, एकदम मौज में रहोगे। ठीक है, तो अभी हमने कोहनी कर दी है, अभी हम काढ़े आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हाफ आधी अंगुली आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। अब पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम जहां से आए थे वहीं वापिस जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड शेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहानी हो गई। अब कूनी पर आ जाएंगे। हाथ नीचे नहीं रखना, थोड़ा सा दर्द करेगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने यहाँ तक का कर दिया। अब आगे हम यहाँ पर, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आगे से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम कंधे पर आ जाएंगे, हाथ दोनों। 1 2 ऊपर जाएंगे, इनहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे, आगे आएंगे, एक्सेल करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हम बचपन में कभी किसी को मना करना था तो क्या करते थे? एक कंधा उठा करते थे, ना नहीं, नो नो नो। बचपन में ये काम खास कर रहे थे। अभी हमको एक हाथ से भी करना है, दोनों हाथ से भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कंधे को आगे पीछे भी करना है हमको। देखो ये आगे ऊपर पीछे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिवर्स करेंगे, पीछे से ले जाके आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने मजबूताई से, बहुत ही मजबूताई से मजबूत कर दिया है। जैसे ही आप हर रोज हल्का फुल्का, जब भी इच्छा हो जाए, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे।
बिल्कुल मजबूत हाथ। दुनिया के अंदर ये हाथ से ही काम होता है। ब्रेन को सोचना होता है, पैर को दौड़ना होता है, मगर जो काम करते हैं हम हाथ से ही करते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से ये सारा जो आपको ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं धीरे धीरे करते हुए नगर सेट की ओर। अभी आपको विशुद्ध चक्र में साथ में स्पाइनल कोड के 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, बहुत स्पीड में नहीं करना, झटके नहीं लगाने, स्लोली स्लोली करना है। जैसे मान लो आप 1 2 3 4 5, 4 या 5 सेकंड लगे, तब धीरे 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 ये चीन को आपको छाती का लगा देना है। 1 2 3 4 5 दबा के रखिए वहां पर, और आपको थूक निगलने की कोशिश करिए। जैसे आप कुछ निगलते हैं, आप कुछ पीते हैं, तो उसको नीचे दबा के हुए 1 2 3 4 5 के बाद थूक निकालिए। उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 4 5 सीधे आ गए। उसके बाद आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट जाएंगे, धीरे धीरे 1 2 3 4 5, आपको जितना हो सके इतना जाइए आप। उसके बाद मुंह बंद रखने के बाद आपको थूक निकालने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 सामने आ गए आप। उसके बाद आप राइट हैंड की ओर चलेंगे, 1 2 3 4 5, एक्सट्रीम राइट जाने के बाद थूक निकालने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 सामने से आ गए। अब धीरे 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 आकाश की ओर देखना है, 1 2 3 4 5। वहां पर भी आपको थूक निकलने की कोशिश करनी है, 1 2 3 4 5। अब आपको स्लोली स्लोली नीचे से लेकर घुमाते हुए लेफ्ट से लेकर बैक राइट, 1 2 3 4 5। आपको 5 बार स्लोली स्लोली करना है, कोई झटके लगाने नहीं है। आपकी बहुत मजबूत हो जाए उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, मगर अभी आप एक बेसिक साधक हो, सीनियर सिटीजन हो, तो बहुत स्लोली आराम से करिए। वैसे रिवर्स करेंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, आराम से। अब आपको जड़बे दांत, आपके दांत सही सलामत रहेंगे दुनिया के अंदर, तो जितना भी आप खाना चाहते हो, कोई भी टेस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो दांत मुख धोती मैंने पहले भी बताई थी आपको, आज फिर बाद में बताएंगे। अभी आपको दांत की सुरक्षा के लिए क्या करना है, पूरा दांत खोल देने हैं। हर एक मनुष्य की अपनी जितनी 4 अंगुलियां होती है, ये 4 अंगुलियां इतनी आराम से अंदर जा सके, ऐसी भगवान ने व्यवस्था करी है। यदि कोई मावा मसाला खाता है, तम्बाकू खाता है और कुछ गड़बड़ करता है और उसके जबड़े पैक हो जाते हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी चाहिए। 4 अंगुली डाल दो, पूरी 2 पानी पूरी एक साथ में जा सके। पूरी जाने के बाद आपको उसको टकराना है 5 बार, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको ये जड़बे हैं आपको आगे पीछे करना है। ये आपकी कान की एक्सरसाइज, जड़बा आगे पीछे हिलाते हैं जो आपका, वो कान की एक्सरसाइज है। उसके बाद साइड में 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको आंखों में उसका पूरा हिसाब किताब, दुनिया के अंदर आंख का हिसाब किताब हर जगह पर अलग है। उसका टेम्परेचर अलग, उसका प्रेशर अलग, उसका 4-6 स्नायु है उसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 स्नायु आंख के अंदर है। और 6 स्नायु को सिर्फ आपको एक्सरसाइज देनी है। जैसे ही आप उसको एक्सरसाइज देंगे तो आंखें आपकी कभी कमजोर नहीं होगी।
मेरे ग्रैंडफादर को कभी मोतिया नहीं आया था। उनको आंखें 85 के बाद भी आंखें उनकी डोनेट करनी थी, तो आंखें इतनी सुंदर रही थी उनकी। तो आप भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो आप मुंडी को सीधा रखते हुए ये आपकी आंखें की को धीरे 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 पूरा ऊपर उठाइए। और यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो आपका अंगूठा जो आपके सामने, आप अंगूठे को देखते रहिए और धीरे 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 आंखों को ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद धीरे 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 आंखों को नीचे ले जाइए। वहां तक ले जाइए कि आपको एक नीचे से आंखें यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा बस, मगर मुंडी नीचे नहीं उठानी, मुंडी ऊपर उठानी, मुंडी को सीधा रखना है आपको। तो ये ऊपर नीचे नीचे और नीचे और नीचे और वैसे यहाँ से साइड में राइट हैंड साइड आप देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए कहाँ तक आपको दिखता है। जब तक आपका अंगूठा दिखता है आप जाइए। एग्जैक्ट 20-20 तभी विजन होगा जब आप बिल्कुल मुंडी हिलाए हुए देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको ड्राइविंग में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि पीछे से ब्लाइंड स्पॉट से कोई गाड़ी आ रही है, आप आगे भी देख रहे हैं फिर भी आपको नजर में दिखेगा। तो ये 5 बार आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको अपनी आंखों को क्रॉस में ले जाना है। जैसे आपने ऊपर ले गए क्रॉस में, राइट के ऊपर में जहां तक दिखे थे वहां तक मुंडी को हिलाना नहीं है। धीरे 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 आपको नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5। अब आपको लेफ्ट की ओर ले जानी है पूरी। 1 ऐसे ऊपर नहीं देखना है, आपको मुंडी सीधी रखनी है। 2 5 बार होने के बाद आपको ये अंगूठे से पूरा राउंड शेप में घुमाना है, पूरी बॉर्डर टू बॉर्डर। आप देखते रहिए ये कहां से दिखता है कहां जा रहा है। 1 2 3 4 5। अब आपको पद्मासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो या जो आसन आपको अनुकूल आता है उसमें स्ट्रेट रहते हुए नीचे से देखते हुए, नीचे यानी कि ये बॉर्डर जो आपको देखते हुए धीरे 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 ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, ऊपर देखना है। एक बॉर्डर आएगी जहां से आपको ऊपर नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको धीरे से लेके अर्धनंदेरित की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद करते हुए, यानी नीचे से प्रकाश के थोड़े से किरण दिखते हैं और धीरे 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 आंखें ऊपर ले जाते हुए 2 भुवों के बीच में जहां पर आपका आज्ञा चक्र है वहां पर स्थित करनी है और आराम से बैठना है। और आती जाती सांस को धीरे 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 आपको देखते रहना है। यहाँ इनहेल आ रहा है, इनहेल एक्सेल जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहिए। और पूरे पैरों से सारे अंगूठे से शुरू करते हुए आंखों तक जितने भी जॉइंट्स को हमने एक्सरसाइज दी है, मानसिक तौर पर धीरे 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 आप हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है,
सिर्फ आपको उसके ऊपर ध्यान ले जाना है कि हाँ हमने अंगूठे करे, रखना किया, घुटने किए, कमर की, स्पाइनल कोड की, हमने छाती को भाग के किया, हमने पेट के भाग को किया, हमने कंधे किए, कंधों में हमने कौन कौन से किए, हमने कूनी के कौन कौन से किए, हमने ये अपना जो कलाई है उसमें कौन कौन से किए, अंगूले और अंगूठों के लिए क्या क्या किया, फिर वापस हम गए, फिर वापस हम आगे गए, वापस आए, फिर हमने गर्दन से किया, तो गर्दन के स्पाइनल कोड नंबर 1 2 3 4 में हमने क्या किया, 1 2 3 4 किया। उसके बाद हमने जो के साथ किया, कान के लिए किया, आँखों के लिए, तो पूरा शरीर हमने धीरे 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 नीचे से शुरू करते हुए झाड़ू मारा है और यहाँ से हमने पूरा उसका कचरा को बाहर फेंका हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप 1 या 2 आवर्तन कर सकते हैं। जैसे ही आप एक आसन में बैठ के, जैसे मान लो पद्मासन में बैठे हैं आप या सिद्धासन में बैठे हैं, जो भी आसन में बैठे हैं, आप आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं या दोनों हाथों को मिला के बैठे हुए हैं, तो धीरे 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 अब हम राजयोग की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो आपको मानसिक रूप से जो जो किया है उसका मनन करना है। सिर्फ आपको धीरे धीरे आप सोचिए, तो मैंने पैरों के किए, पैरों के अंगूठों के किए, आगे पीछे किया, फिर उसको घुटनों के किए, घुटनों को आगे पीछे किया, बटरफ्लाई किया। तो आप धीरे धीरे हर एक जॉइंट्स पर आप अपनी ध्यान की अवस्था को, मन को वहाँ पर ले जाइए। धीरे 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 आप उस वक्त देखेंगे अक्सर आपके कोई भी प्रकार के सांसारिक हो या किसी भी प्रकार के विचार आपके धीरे 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 शांत होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपके विचार शांत हो रहे हैं, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, नीचे से शुरू करते 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 आपको उसी ढंग से आपको सारे चक्र भेदन हो रहे हैं। आपके हर एक जॉइंट्स आपके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये गीता में बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र यानी कि आपका क्षेत्र है पूरा, और क्षेत्रज्ञ जो आपका राजपाट है। तो राजा को हर हमेशा हर एक क्षेत्र का, उसकी हर एक बॉर्डर का और उसमें होने वाली हर एक गतिविधियों का पता होना चाहिए। जब वो पता हो रहेगा तभी वो अच्छा राजा कहलाएगा। तो जहाँ पर गड़बड़ है उसको वहाँ पर ठीक करना पड़ता है राजा को। तो आप अंदर इस शरीर के अंदर एक राजा बैठे हुए हैं, ये क्षेत्र है और आप क्षेत्रज्ञ होने चाहिए। आप उसके ज्ञाता होने चाहिए कि शरीर के कौन से पार्ट में क्या हो रहा है। यदि आपको कहीं गड़बड़ है तो उसको धीरे धीरे ध्यान उधर ले जाना है और सिर्फ इस शरीर को आज्ञा देनी है कि ये मेरा धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाएगा। प्राण शक्ति मेरी मैं वहाँ पर ले जाता हूँ और आज्ञा करता हूँ प्राण शक्ति को कि वो रिपेयरिंग करें, तो वो अपने आप ही ठीक हो। तो ये आप 2 या 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से लेकर आपको ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान का मतलब है पहले हमने धारणा करी। धारणा का यही मतलब है कि आपने धारणा करी कि हाँ हमने ये हिलाया, ये हिलाया, ये हिलाया, ये हिलाया, आगे धीरे 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 करते हुए पूरा यहाँ तक आए। फिर हमने दोबारा किया, फिर दोबारा हमने धारणा की। जैसे जैसे आपकी धारणा क्लियर होती जाएगी मानसिक रूप से, आप शांत होते चले जाएंगे। जैसे ही आप शांत हो चले जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान करना है उसके हिसाब से कि हमने पहले ओंकार किया, ब्रह्मरी प्राणायाम किया, तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। तो इसी ओंकार का धीरे 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 जाप करते हुए, पहले हमने वैखरी वाणी से किया है, अब आपको उसी ओंकार धीरे 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 मानसिक रूप से अंदर ही करना है। जैसे ही आप धीरे 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 करते शुरू हो जाएंगे, वो आपका ध्यान रहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ध्यान करते 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 समय बीतता चला जाएगा, पहले आपको बहुत सारे विचार आते रहेंगे, फिर लगेगा कि नहीं करना है, छोड़ो बहुत कर दिया आज। मगर ये एक बहुत सुंदर यात्रा है
उस यात्रा पर मैं जहाँ तक आगे गुरुओं के अमूल्य निर्देश से और उनके हाथ पकड़ के उनके आशीर्वाद से जो मैं चला हूँ, वो आपको नम्र प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ थोड़ा उसका आनंद उठाइए, उसका मजा लीजिए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। करना आप ही के हाथ में है। मैं ये नम्र प्रयत्न कर सकता हूँ। तो अभी हम चलेंगे, ये आप 2 या 4 मरतबा धीरे जो मैंने ये रास्ता दिखाया आपको कि धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान में उतरने का जो राजमार्ग है वो उसका पहला मैंने पार्ट आपको ये दिया है। बहुत प्राथमिक चरण है, उसके बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे कि एक पर्वत पर, चोटी पर आपको चढ़ने के लिए सारे रास्ते हैं, सबको अपने अपने रास्ते अलग अलग हैं। जैसे एक इंसान की फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से नहीं मिलती है, एक बाल का छेद दूसरे आदमी का बाल का छेद नहीं मिलता है, किसका चेहरा बहरा नहीं मिल रहा है। तो उसी ढंग से आपको अपनी यात्रा करनी है। मैंने ये रास्ते दिखाए हैं, आप अपने ढंग से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको अनुभव आना शुरू हो जाएगा। जैसे अनुभव आएगा उत्साह बढ़ेगा, प्रेरणा अपने आप भगवान का शुक्र करेंगे। और जिस ढंग से आप कितनी ईमानदारी से, कितनी तीव्रता से, कितने मनोबल से आप इसको करते हैं, उसके ऊपर बहुत आधार है। अभी हमने सिर्फ ये एक पोर्शन लिया हुआ है, अभी हर रोज नया नया पोर्शन लेंगे हम, और उसके ऊपर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आनंद आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम प्रार्थना कर लेंगे, आसन जमाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए गहरी सांस लेते हुए उन गुरुओं का धन्यवाद दे देंगे जिन्होंने हमको योग का ज्ञान यहाँ तक दिया हुआ है। गहरी सांस। शांति शांति शांति। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् आपका दिन मंगलमय हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। गिरावैन हर हर महादेव। हेलो मैंने बंद किया बंद फिनिश कर